Good morning to all students. In the last video of class 12 business studies we discussed chapter number 7 directing. You know very well there are basically four elements of directing: supervision, motivation, leadership and communication. In the last video we discussed the third pillar of or third element of directing, that is leadership. In this video we discussed what is leadership. Leadership may be defined as the process of influencing the behavior of people by making them strive voluntarily towards the achievement of goals. As well as we discussed features of leadership, importance of leadership, qualities of a good leader. As well as we discussed the leadership style. You know there are basically three types of leadership style, that is autocratic leadership, democratic leadership and free rein leadership. And after that we will make a differentiate between all these three types of leadership style. In today's video we will move to the fourth pillar or fourth element of directing, that is communication. What is communication? Types of communication, importance of communication and the communication process. So let us start today's topic, that is communication. So communication can be defined as a process of exchange of ideas, facts, feelings, views etc between two or more people to create common understanding. यानी कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे दो या दो से अधिक पीपल्स जो होते हैं अपने आइडियाज़ को, फैक्ट्स को, फीलिंग्स को एंड व्यूज़ को एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज करते हैं ताकि दोनों की एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन सके. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आपको कोई इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करनी है तो मैं आपको कम्युनिकेट करूँगा, उस इन्फॉर्मेशन को आपको भेजूँगा, ओके, ताकि आपकी उस टॉपिक पे कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन सके. और जब भी मैं कोई आइडियाज़, फैक्ट्स या फीलिंग या व्यूज़ अपना शेयर करूँगा आपसे, तो इस वे में शेयर करूँगा कि जिस मीनिंग से मैं उस डाटा को कम्युनिकेट कर रहा हूँ, उस फीलिंग या व्यूज़ को कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आपको भी वो डाटा, वो इन्फॉर्मेशन उसी वे में कम्युनिकेट हो जिस फीलिंग के साथ मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जिस मीनिंग के साथ मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ. यानी द बेसिक पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन इज़ कॉमन अंडरस्टैंडिंग. यानी मैं जिस वे में भेज रहा हूँ, मैं जिस मीनिंग के साथ उस मैसेज को भेज रहा हूँ, आपको भी उसी मीनिंग में वो मैसेज मिले. दिस इज द बेसिक पर्पज़ ऑफ द कम्युनिकेशन. सो इन सिंपली वर्ड वी कैन से कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज of ideas, facts, feeling, views between two or more people to create a common understanding. Here is a few definition of communication. The first definition is given by Lewis Allen. According to Lewis Allen, communication is a sum of all things one person does when he wants to create understanding in the mind of another. It involves systematic and continuous process to telling, listening and understanding. यानी एक जो पार्टीज़ है वो बोलता है, दूसरा पार्टी उसको सुनता है और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है. और ये जो पूरा प्रोसेस है वो सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है और कॉन्टिन्यू प्रोसेस होता है जो लगातार चलता है. और ये कम्युनिकेशन प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, आइडियाज़ पे, इंफॉर्मेशन में कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो जाए. वेयर एज अकॉर्डिंग टू कुंट्स, communication is transfer of information from the sender to the receiver with the information being understood by the receiver. यानी कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसफ़र करते हैं. ट्रांसफ़र कौन करता है? फ्रॉम द सेंडर. किसको करता है? रिसीवर, ताकि रिसीवर उस इंफॉर्मेशन की मीनिंग को समझ सके. एज वेल एज अकॉर्डिंग टू रोजर्स, कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच people create and share information with one another to order to reach common understanding. यानी कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पीपल इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और उसको शेयर करता है किसी दूसरे के साथ, ताकि वो दूसरे तक वो इन्फॉर्मेशन उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ डेवलप हो जिस अंडरस्टैंडिंग से या जिस मीनिंग के साथ सेंडर के द्वारा भेजी जा रही. यानी बेसिकली अगर हम कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन को स्टडी करें
तो इसमें पहली बात है कि इसमें मिनिमम 2 पार्टीज़ होती हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर। दूसरी बात होती है इसमें एक्सचेंज जो होता है वो आइडियाज़ का होता है, इन्फॉर्मेशन का होता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, यानी कम्युनिकेशन की हेल्प से हम दोनों लोगों के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। अगर ये 3 चीज़ें हैं तभी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट वी डिस्कस द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन प्रोसेस? तो पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझने के लिए हमें 1 बाय 1 उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे को अपनी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करता है और दूसरा बंदा या दूसरी पार्टीज उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती है और उसको इंटरप्रेट करती है उसी मीनिंग में जिस मीनिंग में उसको भेजा गया होता है। So there are basically few elements related to the communication process. The first element of communication process is sender. Who's sender? Sender, the person who convey the message, is known as the sender of communicator. He may be a speaker, a writer or an actor. He initiate the process of communication. यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस की स्टार्टिंग होती है सेंडर से। सेंडर वो बंदा होता है जो मैसेज को कन्वे करता है, उसे हम सेंडर या कम्युनिकेटर कहते हैं। वो स्पीकर भी हो सकता है, वो एक्टर भी हो सकता है, वो राइटर भी हो सकता है। यानी हम ओरली मैसेज सर्कुलेट करते हैं या फिर एक्ट करके आपको मैसेज सर्कुलेट करने की कोशिश करते हैं या फिर लिख के यानी इन रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करते हैं। सो अगर रिटन वे में भेजेंगे तो उसको हम लोग राइटर बोल सकते हैं। एक सिंबॉलिक वे में भेजेंगे, एक्टिंग के थ्रू भेजेंगे तो जो आपको मैसेज सर्कुलेट कर रहा है उसे हम एक्टर भी कह सकते हैं। एज वेल एज अगर वो बंदा आपको बोल के मैसेज सर्कुलेट कर रहा है तो उसको हम लोग स्पीकर कह सकते हैं। और सेंडर इज़ द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। द सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट इज़ मैसेज। यू नो, जो सेंडर होता है वो कोई ना कोई आइडियाज़, फैक्ट, इंफॉर्मेशन, ओपिनियन सेंड करता है रिसीवर को, तो उसी को हम लोग मैसेज करते हैं। मैसेज इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। इट मे कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, ओपिनियंस। इट एग्जिस्ट इन द माइंड ऑफ द सेंडर। जो इन सेंडर के माइंड में चलता रहता है, जो इन्फॉर्मेशन उसे रिसीवर को देनी है उसे हम लोग मैसेज वर्ड टर्म में डिफाइन करते हैं। द थर्ड वन इज इनकोडिंग। इनकोडिंग देखिए, मैसेज की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है प्राइवेसी, एज वेल एज मैसेज इफेक्टिव होना चाहिए। अगर एक सेंडर अपने मैसेज को रिसीवर को भेज रहा है तो पहली चीज़ होनी चाहिए कि मैसेज उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ जाए, उसी मीनिंग के साथ जाए जिस मीनिंग से सेंडर भेजना चाहता है। दूसरी बात होती है उसकी सीक्रेसी, यानी जो मैसेज है अगर सेंडर उस मैसेज को सिर्फ सीक्रेट रहना चाहता है, यानी सिर्फ उस मैसेज को वही समझ सके, वही ले सके जिसके लिए वो भेज रहा है, तो उसके लिए एनकोडिंग एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। सो एनकोडिंग मीन्स व्हाट? The sender translate the message into words, gesture or other symbol which he feels will make the receiver understand the message. This is known as the encoding of the message. Encoding of the message का पर्पज़ ये होता है कि मैसेज को इफेक्टिव बनाया जा सके ताकि कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। यानी हम उसके लिए गेस्चर का यूज़ करते हैं, वर्ड्स का यूज़ करते हैं, अदर सैम्बल्स का यूज़ कर सकते हैं, फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं ताकि मैसेज इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो सके टू द रिसीवर। एज वेल एज सीक्रेसी भी मेंटेन होती है। अगर सेंडर अपने मैसेज को सीक्रेट रखना चाहता है, सिर्फ उसी को भेजना चाहता है जिसके लिए वो मैसेज है, तो वो मैसेज की सीक्रेसी बनाए रखने के लिए इनकोडिंग प्रोसेस को यूज़ करता है। यानी इनकोडिंग जो होता है 2 पर्पज़ के लिए होता है। फर्स्ट, सीक्रेसी ऑफ द मैसेज, सेकेंड, इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज। द फोर्थ वन इज़ अ चैनल और मीडिया। यू नो, जब भी कोई सेंडर अपने मैसेज को रिसीवर को सेंड करता है तो उसके लिए पहले पर्टिकुलर वो चैनल को चूज़ करता है। चैनल मीन्स जिसकी हेल्प से वो अपने मैसेज को सर्कुलेट करना चाहता है। सो चैनल और मीडिया इज़ अ मीडियम बाय विच सेंडर ट्रांसमिट हिज मैसेज टू द रिसीवर। सो जैसे हम अगर सेंडर चाहे तो किसी मैसेज को बोल के भेज सकता है तो उसे हम लोग स्पीकिंग कह सकते हैं, लिख के भेजेगा तो राइटिंग होगा, कॉल के थ्रू भेजता है तो फ़ोन कॉल होगा, बाय नेटवर्क के थ्रू भेजता है तो इंटरनेट होता है। तो जैसे हम लोग आज कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जैसे आपके पास कोई कंटेंट है कि सर ये कंटेंट आप तक पहुंचना चाहिए, तो वो हमें क्या करते हैं, मैसेज को सर्कुलेट करते हैं। अब इस लॉकडाउन के पीरियड में आप मैसेज कैसे सर्कुलेट करते हो, कौन सा मीडिया चूज़ करते हो? इंटरनेट। इंटरनेट में कौन सा मीडिया होता है? व्हाट्सअप होता है, एज वेल एज
मेल के थ्रू आप हमें मैसेज सर्कुलेट कर रहे हो, सो मेल हो गया या व्हाट्सअप हो गया, इट इज़ अ मीडिया ऑफ द और मीडियम ऑफ द और द चैनल ऑफ द सेंडिंग मैसेज। ओके, सो क्लियर हुआ। सेंडर जो बंदा भेजता है मैसेज, मैसेज का मतलब होता है जो कंटेंट होता है या आइडिया या फैक्ट जो भेजना चाहते हैं हम। इनकोडिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू वर्ड्स, gesture or other symbol to make a effective message and to make a secret message. Okay, and what is the meaning of channel or media? Channel or media means a medium through sender sent his message to the receiver. The next element of the communication process, that is decoding. Decoding means जब ये मैसेज रिसीवर के पास पहुंचता है तो रिसीवर उस वर्ड्स को, उस सैम्बल्स को, उस गेस्चर को, उस फ्रेज को कन्वर्ट करता है अपने लैंग्वेज में। सो जब भी हम मैसेज को इनकोड करता है सेंडर, दो पर्पज़ के लिए करता है। सीक्रेसी के लिए, उसको किसी सैम्बल में या किसी वर्ड्स में उसको वो बांध देता है उस मैसेज को। फिर वो मैसेज जब रिसीवर के पास पहुंचता है तो रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करते वक्त सबसे पहले उसको उस मैसेज को डिकोड करता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि इस वर्ड्स का मीनिंग क्या है, इस गेस्चर का मतलब क्या है, सैम्बल का मतलब क्या है, और उसे वो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग उसको डिकोड करता है। सो मीन्स डिकोडिंग मीन्स प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सैम्बल इनटू द मैसेज बाय द रिसीवर। द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, दैट इज रिसीवर। द पर्सन हु रिसीव द मैसेज इज कॉल्ड द रिसीवर। द रिसीवर में बी अ लिसनर, रीडर और व्यूअर। सो रिसीवर कौन होता है? जो मैसेज को रिसीव करता है। वो हो जनरली रिटन के फॉर्म में देखा जाए तो वो उसको पढ़ता है, यानी रीडर। ओरल फॉर्म में अगर देखा जाए मैसेज है तो वो लिसनर हो सकता है, और अगर एक्ट्स के फॉर्म में अगर हम मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो व्यूअर हो सकता है। ओके, सो रिसीवर का मतलब क्लियर हुआ। द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, दैट इज़ फीडबैक। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जब तक फीडबैक नहीं मिलता है आप किसी भी मैसेज को फुल्ली कम्युनिकेट नहीं मान सकते। फीडबैक इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। व्हाट इज फीडबैक? द रिसीवर सेंड हिज रिस्पॉन्स टू द सेंडर ऑफ द मैसेज। सच रिस्पॉन्स इज नोन एज फीडबैक। व्हेन द फीडबैक इज रिसीव्ड बाय द सेंडर, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। यानी फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं ही आपको कोई मैसेज भेजता हूँ तो आप उसके रिप्लाई में भेजते हो ओके सर, यस सर, या आप हमें कोई मैसेज भेजते हो हम आपके उसके रिप्लाई में कुछ ना कुछ भेजते हैं। इट मीन्स रिप्लाई ऑफ द मैसेज, कि वो मैसेज मिला है कि नहीं मिला है। उस मैसेज में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें डाउट क्लियर करते हो, मैं आपसे डाउट क्लियर करता हूँ कि ये क्या है, ये क्या है। सो फीडबैक का मतलब होता है कंक्लूजन रिगार्डिंग द मैसेज। इफ़ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ डाउट्स, सो आप क्या करते हो, उसमें अपने डाउट्स को भेजते हो ताकि आप उस मैसेज को ईजिली समझ सको। So feedback is a very essential part of the communication process. And the last and a very important part of the communication process, that is noise. Noise means what? It means an obstruction or hindrance in the communication process. जब भी communication process होता है इसमें कोई ना कोई hindrance या कोई ना कोई barriers आते हैं। Such barrier will be known as the noise in the communication process. जैसे कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे एम्ब्यूजियस सैम्बल्स। कुछ सैम्बल्स ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, या कुछ गेस्चर होते हैं जो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स मे बी टेकन एज द बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन। इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि नॉइज़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। क्योंकि जब भी हम कम्युनिकेशन प्रोसेस करते हैं तो उसमें कोई ना कोई बैरियर आते हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंटली आपका अकाउंटेंसी टेस्ट लिया है, तो अकाउंटेंसी टेस्ट के रिप्लाई में आपने ये देखा होगा कि जब मैंने आपको पेपर सर्कुलेट किया और जब आपने पेपर कंप्लीट करके वो मुझे आप रिप्लाई कर रहे थे, फीडबैक दे रहे थे, तो उस पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में आपको नेटवर्क प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, मोबाइल हैंगिंग प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, या एनी अदर प्रॉब्लम, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी। सो सच प्रॉब्लम विल बी टेकन एज अ नॉइज़ इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्योंकि जब तक आपका फीडबैक नहीं आएगा तब तक हम लोग कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं मान सकते। सो नॉइज़ का मतलब होता है कि पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंडर टू द फीडबैक जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जो भी हिंड्रेंस आते हैं, चाहे वो ड्यू टू पुअर नेटवर्क हो, या फिर हो सकता है कि सेंडर आपकी बात ना सुन रहा हो,
या रिसीवर को आप जिस वे में का मैसेज कम्युनिकेट किए वो दूसरे वे में उस मैसेज को ट्रांसलेट कर ले. सो सच काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी कैटेगराइज इन टू द नॉइस. So there are basically 8 elements of communication process, that is sender, message, encoding, channel or media, decoding, receiver, feedback and noise. इस पूरे communication process को हम लोग एक diagram की help से study करेंगे. The diagram is, you can see, this is a diagram of communication process and you can learn or understand this diagram because it is very helpful to understand the elements of the communication process. In this diagram you can see the first elements of communication process, that is sender. Sender क्या करता है, मैसेज को डिज़ाइन करता है, फिर उस मैसेज को इनकोड करता है. इनकोड करने के बाद उसे भेजने के लिए वो मीडिया का सिलेक्शन करता है कि हमें इस मैसेज को कैसे भेजना है, ओरली भेजना है, रिटन भेजना है कि एक्ट करके भेजना है. फिर उसके बाद जब वो मैसेज रिसीवर के पास पहुंचता है तो रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है, यानी जो गेस्चर हैं, पोस्चर आपने यूज़ किया है, सैम्बल्स को यूज़ किया है, फ्रेजेस को यूज़ किया है, उसे वो डिकोड करता है. एंड देयर आफ्टर रिसीवर के पास वो मैसेज पहुंचता है और उस मैसेज के रिगार्डिंग ही सेंड द फीडबैक टू द सेंडर, यानी वो उस मैसेज के रिगार्डिंग अपना फीडबैक सेंडर को भेजता है. अब इसमें देख रहे होंगे आप एक बीच में नॉइज़ है, ये पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में आता है. जैसे सेंडर को मैसेज सेंड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो भी उसे हम नॉइज़ बोलेंगे. मैसेज डिज़ाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो भी उसे नॉइज़ बोलेंगे. इनकोडिंग करने में भी प्रॉब्लम आ रही हो तो भी उसे हम नॉइज़ भेजेंगे. मीडिया सेलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही हो, मैसेज को भेजने में दिक्कत आ रहा हो तो भी उसे हम नॉइज़ कहेंगे. रिसीवर डिकोड करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो भी हम उसे नॉइज़ के अंदर कैटेगरीज करेंगे. सो नॉइज़ का मतलब होता है इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, इफ देयर एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज ऑन हिंड्रेंस और बैरियर्स टू complete the communication process, it will be taken as a noise. So it's a very easy concept for you. Here's another example for the noise, the an inattentive listener. ये भी एक एग्जाम्पल है नॉइज़ का कि जिस सेंडर को जिसको हम मैसेज भेजना चाह रहे हैं वो अटेंटिव है ही नहीं. फॉल्टी डिकोडिंग, अटैविंग रॉन्ग मीनिंग टू मैसेज, यानी आपने जो मैसेज को डिकोड किया है उसको जब इनकोड कर रहे हैं तो उसकी मीनिंग गलत आ रही हो, तो आपने जो डिकोडिंग की है वो गलत तरीके से कर ली हो. प्री जस्टिस ऑब्स्ट्रक्टिंग टू पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज, यानी आपने जो भी मैसेज किया है उसकी अंडरस्टैंडिंग गलत हो. इनएप्रोप्रिएट गेस्चर एंड पोस्चर, सही समय पे सही तरह का गेस्चर एंड पोस्चर को यूज़ करना भी ज़रूरी है. गेस्चर एंड पोस्चर का मतलब होता है जब आप कोई भी मैसेज ओरली या एक्ट करके परफॉर्म करते हो तो आप कई तरह के फेशियल एक्सप्रेशन एज वेल एज आप अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करते हो. कभी कभी वो बॉडी लैंग्वेज आपकी सही वे में एक्सप्रेस नहीं हो पाती है, जिस कारण मैसेज को जिस वे में या जिस मीनिंग से आप रिसीवर को भेजना चाहते थे वो उस वे में नहीं पहुंचता है. तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा गेस्चर और पोस्चर क्या है. गेस्चर एंड पोस्चर मीन्स द यूजिंग ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज वाइल यू आर सेंड हिज मैसेज टू द रिसीवर. आप अपने मैसेज को जब रिसीवर को भेजना चाहते हो तो आप उस समय जनरली एक्टिंग के फॉर्म में या ओरल के फॉर्म में जब भी आप मैसेज भेजते हो तो आप कई तरह के फेशियल एक्सप्रेशन को यूज़ करते हो या फिर बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करते हो. आप मूवीज़ देखते हो, मूवीज़ में कुछ एक्टर बहुत अच्छे होते हैं, कुछ एक्टर नहीं अच्छे होते हैं. स्टोरी कॉमन रहती है, मैसेज कॉमन रहता है, बट द फैक्ट इज़ कि हम उस मैसेज को कैसे इफेक्टिवली भेज सकते हैं. एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा स्पीकर अच्छे बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करके, अच्छे ढंग से फेशियल एक्सप्रेशन को यूज़ करके अपने मैसेज को इफ़ेक्टिवली लोगों तक पहुंचा सकता है. वहीं जिस एक्टर की या जिस भी स्पीकर की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती है वो सही ढंग से फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर पाता है, जिससे वो अपने मैसेज को इफ़ेक्टिवली रिसीवर तक पहुंचाने में अनसक्सेसफुल होता है. सो हेयर इट वी विल डिस्कस द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस in which we study. They are basically 1 2 3 4 5 6 7 8 elements of communication process, which are as follows. Number 1 sender, number 2 message, number 3 encoding, number 4 media, number 5 decoding, number 6 receiver,
नंबर 7 फीडबैक एंड नंबर 8 नॉइस। सो आई होप कि आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। यू नो कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? आपने सुना होगा, जैसे हमने लीडरशिप में पढ़ा था कि ऑटोक्रेटिक में कैसा कम्युनिकेशन होता है, वन वे होता है, क्योंकि वहाँ डिक्टेटरशिप होती है, डोमिनेटिंग होता है, लीडर सिर्फ अपनी बात रखता है और रिसीवर से कोई या अपने फॉलोअर से या सबऑर्डिनेट से कोई बात नहीं सुनता है। और वहीं डेमोक्रेटिक में क्या होता है, जहाँ सेंडर या लीडर अपनी बातें रखता है और उससे फॉलोअर्स या सबऑर्डिनेट से, यानी जो लिसनर हैं, जो रिसीवर हैं, उनसे भी सजेशन लेता है, यानी उनसे फीडबैक लेता है। सो अगर हम पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस पे ध्यान रखें तो कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्टिंग होती है सेंडर से और ख़त्म होती है फीडबैक से। यानी अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन बिलीव्स इन द डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट। सो पूरे कर कम्युनिकेशन प्रोसेस को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें कई तरह की फ़ायदे देखने को मिलते हैं। सिर्फ अगर वन वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि सिर्फ सेंडर की बात की जाती है, रिसीवर की बात नहीं रखी जाती है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं माना जाता। सो बेसिकली आप इतना क्लियर रख लीजिए कि कम्युनिकेशन प्रोसेस बिलीव्स इन द two-way communication. It does not believe in the one-way communication, and it also believes in the democratic environment. So इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इनकी इंपॉर्टेंस को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज एक्ट्स एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। यू नो वेरी वेल, एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन तभी हो सकता है जब दोनों कोऑर्डिनेशन अपनी इंफॉर्मेशन को ईजिली सर्कुलेट कर सकें और एक दूसरे के रिलेटेड कोई भी डाउट्स एंड सजेशंस हों तो वो एक दूसरे को उसको इम्प्लीमेंट भी करें। जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, तो परचेज डिपार्टमेंट ईजिली अपनी इन्फॉर्मेशन एंड मैसेज सेल्स डिपार्टमेंट को सर्कुलेट कर सके और सेल्स डिपार्टमेंट से उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पे सजेशन भी रिसीव कर सके। द नेक्स्ट वन इज़ हेल्प्स इन द स्मूथ वर्किंग ऑफ एंटरप्राइजेस। इसके लिए बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं। सपोज आपके पास 3 डिपार्टमेंट हैं मेनली, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट। आप देखिए यहाँ कोऑर्डिनेशन भी दिखेगा और स्मूथ वर्किंग ऑफ एंटरप्राइजेस दिखेगा ड्यू टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर आप देखिए सेल्स डिपार्टमेंट ने इनिशिएट किया, बताया मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को कि मुझे इतना, परचेज डिपार्टमेंट को बताया कि मुझे इतना सामान चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। 3 डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, सबसे पहले आता है परचेज डिपार्टमेंट, फिर आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और फिर आता है सेल्स डिपार्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का काम होता है रॉ मटेरियल खरीदना और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को देना, और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को होता है काम सामान बना के, मटेरियल्स को बना के सेल्स डिपार्टमेंट को देखना ताकि वो सेल्स करके प्रॉफिट अर्न कर सके। अब सेल्स डिपार्टमेंट के पास ऑर्डर आया कि उसे 1000 क्वालिटी का गुड्स चाहिए, 1000 क्वांटिटी का गुड्स चाहिए, यूनिट्स गुड्स चाहिए, तो वो किसको इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करेगा? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को। मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन किसको देगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो यू कैन सी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस की हेल्प से सेल्स डिपार्टमेंट किसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है? मैन्युफैक्चरिंग को। मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन परचेज डिपार्टमेंट को कह रहा है कि रॉ मटेरियल लेकर आओ, तो परचेज डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को बोलेगा कि हाँ 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे रॉ मटेरियल्स आने में। फिर उसी बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करेगा और फिर सेल्स डिपार्टमेंट जो कस्टमर है उसको इन्फॉर्मेशन देगा। तो आप देख रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिव होता है तो न सिर्फ कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है, एज वेल एज बिजनेस की जो वर्किंग प्रोसेस है वो भी स्मूथ होने लगती, ईजिली होने लगती। यानी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं होता है, सिस्टमेटिक वे में काम होता है और कॉन्टिन्यू प्रोसेस होती है। नेक्स्ट इज एक्स एज अ बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। यू नो वेरी वेल, कम्युनिकेशन प्रोसेस ही हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कंटेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस से मिलेगी, और विदाउट इन्फॉर्मेशन तो हम डिसीजन ले ही नहीं सकते। तो डिसीजन लेने के लिए कम्युनिकेशन प्रोसेस काफ़ी हेल्पफुल होती है। दैट इज़ इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। यस, आपने देखा कि विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस जो मैनेजर्स होते हैं वो जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं अपने सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स को। काम कैसे करना है, क्या करना है। अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस ना हो तो आप खुद सोचिए, किसी भी सबऑर्डिनेट्स एंड फॉलोअर को उनको कोई काम करना है, कैसे करना है, ये इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं रहेगी।
जब उनके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगी तो वो उस काम को इफ़ेक्टिवली कर नहीं पाएंगे, और जब वो कोई काम इफ़ेक्टिवली नहीं हो पाएगा तो मैनेजरियल एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। द नेक्स्ट वन इज़ प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। यस, आपने देखा होगा कई तरह की इंडस्ट्रियल हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में वर्क करते हैं, उनके बीच में इंडस्ट्रियल पीस लाने के लिए कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज वर्कर्स हैं एंड मैनेजर्स हैं, दोनों के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू ही मैनेजमेंट अपना पक्ष रखता है और वर्कर्स अपना पक्ष रखता है, और फिर उन पक्षों को सुनने के बाद एक बीच का रास्ता, एक सेफ चीज़ें निकाली जाती है ताकि इंडस्ट्रियल पीस डेवलप किया जा सके। द नेक्स्ट वन इज़ एस्टेब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप। लीडरशिप की क्वालिटी में हमने स्टडी किया था कि अ गुड लीडर हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, यानी एक अच्छे लीडर के पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, तभी वो अपनी बात को रख सकेगा, दूसरों को सजेशन ले सकेगा, उनको एनालाइज कर सकेगा, उनके नीड्स को डेवलप कर पाएगा और उसके हिसाब से उनसे काम करा सकेगा, उनको इन्फ्लुएंस कर सकेगा। द नेक्स्ट वन इज़ बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड्स मोटिवेशन। यस, विद द कम्युनिकेशन आपका मोरल डेवलप होता है। मोरल मीन्स व्हाट? विलिंगनेस टू डू एनी वर्क, काम करने की इच्छा। मोरल को हिंदी में कहते हैं मनोबल। मनोबल मतलब मन प्लस बल, यानी मन के साथ बल लगाना, यानी आप फोर्स तो यूज़ कर रहे हो बट आप हर्ट से नहीं यूज़ कर रहे हो, तो वो बल कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं होगा। सो मोरल के लिए इफ़ यू वांट टू इंक्रीज़ योर मोरल, देयर शुड बी अ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपको किसी का मोरल हाई करना है, किसी को मोटिवेट करना है, तो यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि कम्युनिकेशन हेल्प्स स्किल से ही आप अपनी बात उसके सामने रख पाएंगे और उसके अंदर की जो सोशल नीड्स है, जो इंटरनल नीड्स है, उसको डायग्नोसिस कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको मोटिवेट एंड उसका मोरल हाई कर पाएंगे। ओके, सो आज हम लोगों ने कुछ कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस को भी स्टडी किया। दे आर बेसिकली few importance of communication, that is acts as a basis of coordination, helps in smooth working of an enterprise, acts as a basis of decision making, increase managerial efficiency, promotes cooperation and industrial peace, establish effective leadership and boost morale and provides motivation. So आज के इस पूरे वीडियोज़ में हम लोगों ने डिस्कस किया the first one, what is communication? Communication is a process in which we exchange idea, facts, feeling, views between two or more people to create a common understanding. As well as we discussed the 8 elements of communication process, that is sender, message, encoding, channel, decoding, receiver, feedback and noise. And here it is a diagram of communication process कि कैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस इस्टेब्लिश होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जब तक फीडबैक नहीं आता है रिसीवर की तरफ से, तब तक कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं माना जाता है। यानी व्हेन रिसीवर गिव्स हिज फीडबैक टू द सेंडर, देन कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीट, अदरवाइज इट विल बी टेकन एज द इनकम्प्लीट प्रोसेस। ओके, सो जाते जाते इस वीडियो के आखिरी में हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, उस फंक्शन से रिलेटेड आप अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को अपने घर पे इनवाइट करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले एक मैसेज डिज़ाइन करते हैं, एक कार्ड डिज़ाइन करते हैं विच आर नोन एज मैसेज। ओके, यानी आप सेंडर हैं, आपको अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को मैसेज करना है कि आपके घर फंक्शन है, इस पर्टिकुलर डेट पे है और इतने टाइमिंग पे है, आप उनको इनवाइट करना चाहते हैं ताकि वो फंक्शन में अटेंड कर सकें। तो आपने एक मैसेज डिज़ाइन किया, आपको पता है कंटेंट, फिर उसको आप इनकोड करते हैं इन अ प्रॉपर वे ताकि दूसरा बंदा जिसको आप भेज रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन, वो ईज़िली उसको अंडरस्टैंड कर सके। यानी आप कार्ड प्रिंट कराते हैं या उनको कॉल करते हैं या उनको व्हाट्सअप मैसेज करते हैं या उनको, आजकल नया टेक्निक्स यूज़ हो गया, वीडियोस बनाए जाते हैं और वीडियोस इस वे में बनाए जाते हैं ताकि वो इफ़ेक्टिव भी होता है, एज़ वेल एज़ उन्हीं को भेजते हैं जिनके पास वो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। यानी आप मीडिया चूज़ करते हैं, आप ऑफलाइन भेजते हैं, ऑनलाइन भेजते हैं, घर पे जा के उनके कार्ड्स देते हैं, उनको मोबाइल पे मैसेज कर देते हैं, नेट के थ्रू भेजते हैं, दैट इज़ मीडिया।
फिर उनके पास वो मैसेज जाता है, वो उसको डिकोड करते हैं। जनरली डिकोडिंग वहाँ यूज़ होती है जहाँ पे मैसेज ओरली या एक्ट्स के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, यानी जहाँ शब्दों के थ्रू या एक्ट्स के थ्रू, अभिनय के द्वारा आपको मैसेज भेजा जाता है, तो वहाँ गेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। तो आप उसको ट्रांसलेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो आप उस मैसेज को रिसीव करते हैं एंड फिर उसके बाद आप उस मैसेज को, जो रिसीव करता है, जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड है, उस मैसेज को रिसीव करने के बाद आपको फीडबैक भेजते हैं कि येस आई विल कम, आई विल ज्वाइन, एज वेल एज ओके आई गॉट इट, मुझे आपका मैसेज मिला। और वो आपको आपके वेल विश देते हैं, यानी आपको एक फीडबैक देते हैं कि यस आपका जो मैसेज भेजा था वो हमको मिल गया है। सो आप एक तरह से रिलैक्स हो जाते हैं कि आपने जो भी कम्युनिकेशन किया है, जो भी मैसेज भेजा है, वो लोगों तक पहुंचा है एंड वो आपकी इन्फॉर्मेशन, वो आपकी पार्टीज़ को ज्वाइन करेंगे। और उसी फीडबैक के बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं ये भी फील हो जाता है कि कितने रिलेटिव्स, हाउ मेनी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और कलीग्स विल ज्वाइन योर फंक्शन। आप तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी अरेंजमेंट्स करते हैं, जनरली थोड़ा बढ़ा के ही करते हैं, बट आप उसी के बेसिस पे एनालाइज कर लेते हैं कि यस हाँ इतने लोग आने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करनी है। और उसमें कहीं ना कहीं बेसिस में कोई नॉइस भी आता है, यानी जब आप मैसेज भेजते हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आपको होती ही होती है, ठीक है। जैसे किसी का घर नहीं मिलता है, या आप प्रॉपर सही वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो ये यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ अ नॉइस। सो it is an practical example related to the communication process. I hope कि आज जो हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया है, द फोर्थ पिलर ऑफ डायरेक्टिंग, द फोर्थ एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज कम्युनिकेशन, you can easily understand it. If you have any kind of doubt or suggestion related to this topic, so please ask me in the WhatsApp group as well as the online classes. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot.